Dear students, a warm good morning to all of you. Today our topic is spectroscopy. As you know, this is a new concept for you. So I will try my best to make you all understand about the term spectroscopy. So this spectroscopy is all about the structure determination, structure elucidation of a molecule. ठीक है, so chemists, physicists, biochemists and other scientists are deeply interested in knowing the structure of molecules. If one could actually see a molecule, there would probably be little fun in investigating it further. However, these systems are of so infinitesimal dimensions, infinitesimal means very small dimensions, that it's not possible to see them. Then, though some progress has been made in photographing these species. Fine. So, our knowledge about molecular structure is derived indirectly from the technique known as spectroscopy, which deals with the transitions that a molecule undergoes between its energy levels upon absorption of suitable radiations. Fine. So you will start the molecular spectroscopy or molecular spectra. So molecular spectra provides valuable information regarding molecular structure. Molecular spectra provides valuable information regarding what? Molecular structure. Fine. Molecular structure और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारा किसमें स्ट्रक्चर में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, व्हाट एल्स, एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज. सो दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इसमें हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को डिटरमिन जब करते हैं हमें क्या डिटरमिन होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसका, मॉलिक्यूल का, प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप क्या डिटरमिन कर सकते हो, इससे आपको क्या निकलता है, बॉन्ड डिस्टेंस कामा बॉन्ड एंग. ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मॉलिक्यूलर सिमेट्री. ठीक है, ये चीज़ें किससे में आता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस बॉन्ड स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये सारा किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, प्लस बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड प्लस क्या आता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. ठीक है, एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ तो पता ही है. सो वी कैन से, so molecular spectroscopy may be defined. So how can you define this molecular spectroscopy? ठीक है, so molecular spectroscopy may be defined as a study of, I will write it down, so may be defined, molecular spectroscopy may be defined as the study of interactions of electromagnetic radiations, EMR, electromagnetic radiations, किसके साथ, with matter यानी molecule, with matter. ठीक है, so what's molecular spectroscopy? It's an interaction. It's defined as the interaction between, it's a study of the interaction between electromagnetic radiation with matter. So what's the consequences of that interaction? We can determine the structure of molecule. ठीक है, क्लियर कर लो. मैंने बताया कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना, इट्स ऑल अबाउट व्हाट, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. सो स्ट्रक्चर डिटर्मिन में हमें क्या डिटर्मिन होते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा.
ठीक है ना। सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, जब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा देखते हो विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन डिटरमिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. So here we can define this molecular spectroscopy is the interaction of the electromagnetic radiation with matter, and from this interaction we can determine the structure of molecule. Fine. So this interaction, ये जो इंट्रैक्शन होता है किस किस के बीच में, मैटर प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. ये जो इंट्रैक्शन होता है, दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट्स इन ईदर इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है. या तो एमिशन होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का इन डिस्क्रीट अमाउंट्स कॉल्ड क्वांटाज, ठीक है. डिस्क्रीट अमाउंट्स में एमिशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, और उन डिस्क्रीट अमाउंट्स को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्वांटाज, ठीक है. सो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन एमिशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है. एंड फ्रॉम दिस इट्स पॉसिबल टू इन्फर द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ मैटर एंड देयर बाय द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है. हम उससे एनर्जी लेवल इंट्रैक्शन को देखते हैं और उससे हम क्या करते हैं काम, उससे हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. फाइन. और ये जो एनर्जी चेंज होता है ना, इट कैन आकर थ्रू आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम गामा रीजन टू रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक है. तो सो डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमें आगे पढ़ना है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ट्रांसलेशनल, ठीक है, जो कि हमें आगे पढ़ लेना है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कौन मॉलिक्यूल किस एनर्जी के साथ रिएक्ट होता है, तो उस हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि हमें आगे देखना है. फिलहाल हम जनरल में पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है. सो लेट्स कंसिडर हाउ अ स्पेक्ट्रम अराइजेस. Let's consider how a spectrum arises. So for this, consider two molecular energy levels, En and Em, ठीक है. तो स्पेक्ट्रम एराइज जो होता है, ठीक है, हम देखते हैं कैसे स्पेक्ट्रम एराइज होता है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. उसके लिए हम दो एनर्जी लेवल्स को कंसिडर करते हैं, En एंड Em, ठीक है. कैसे, इफ़ द फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू falls on a molecule in the ground state, ठीक है. Let En is the ground state and Em is the excited state. और मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, लेट द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, क्या, H इंटू न्यू, ठीक है, हैविंग द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी H इंटू न्यू, ठीक है. तो मॉलिक्यूल लेट En इज द ग्राउंड स्टेट एंड Em इज द एक्साइटेड स्टेट. सो वेन एवर मॉलिक्यूल absorbs the radiation having energy H into nu. This is the radiation. Whenever the molecule absorbs the radiation, this, once again I will say, this radiation, it can be different types of electromagnetic spectrum, that will depend upon the which type of spectroscopy it is, ठीक है. if rotational then microwave, if vibration then IR, ये हमें आगे सारा देख लेना है, ठीक है. फिलहाल जनरल में जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, जिसकी एनर्जी H इंटू न्यू के बराबर होती है, हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू, ठीक है. तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और इट will goes when it absorbs the radiation, it will excite from ground state to the excited state, and during this process molecule absorbs energy H into nu, ठीक है ना. तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया एक, स्पेक्ट्रा हो गया एक से ज़्यादा, ठीक है. सो वी कैन से, और एनर्जी किसके बराबर होती है, दिस डेल्टा E इज़ इक्वल टू, ये डिफरेंस इट्स इक्वल टू Em माइनस En, ठीक है ना. एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ये इसके बराबर होता है. और ये क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम,
ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी टू द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई between two molecular energy levels, ठीक है, then the molecule undergoes a transition. Fine, then the molecule undergoes a transition from lower energy level, this is lower energy level or ground energy level, from lower energy level to the higher energy level with the absorption of a photon of energy h into nu. ठीक है, so the spectrum thus obtained is called absorption spectrum. I will repeat once again. ठीक है, if the photon of frequency h nu, if the photon of frequency nu falls on a molecule in the ground state and its energy h into nu is exactly equal to the किसके बराबर है, difference, to the energy difference that's equal to em minus en between two energy levels, then the molecule undergoes a transition from lower energy level to the higher energy level with the absorption of a with the absorption of a photon, ठीक है ना, with the absorption of a photon, ठीक है, of energy h into nu, and the spectrum thus obtained in this transition is called what, absorption spectrum. Fine, now let's see what's this emission transition, emission spectrum or emission transition. ठीक है, so again this is En and this is En, ठीक है, En and Em. So we can say हम ऐसे बोल सकते हैं, if the molecule which is already in the excited state, if the molecule falls from the excited state to the ground state, if the molecule falls from the excited state to the ground state, ठीक है, the molecule falls from the excited state to the ground state with the emission of a photon, यहाँ emit होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, emit, with the emission of a photon of energy h into nu, यहाँ emit होता है ना कि absorb होता है, ठीक है, क्योंकि molecule excited state में इसको ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये ग्राउंड स्टेट में आता है, इसको स्टेबल होना है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको एनर्जी इमिट करना है, ठीक है, लॉस करना है. सो विद द emission of a photon of energy h into nu, the spectrum obtained is called emission spectrum. The spectrum obtained, ये आप E कर दो, A कर दो, ये B कर दो, this is called emission spectrum. So मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है. स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, एंड फ्रॉम दिस इंट्रैक्शन वी कैन इन्फर द और वी कैन डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. एंड दिस spectroscopy we can determine the molecular spectra of molecules, and from this molecular spectra what we gonna determine, we gonna determine molecular structure like bond angle, bond distance, molecular symmetry, ठीक है, and chemical properties में हम क्या देते हैं, electronic distribution, bond strength, molecular reactions and thermodynamic properties. And this molecular spectra, it can be defined also as a study of interaction of electromagnetic radiation with matter. देखो मैटर यहाँ पर है, इसको ये इंटरेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी और उस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ठीक है. एंड दिस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इट्स ऑफ टू टाइप्स, वन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और एमिशन में क्या होता है, एनर्जी इमिट होता है. और दोनों की जो एनर्जी होती है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड एनर्जी लेवल, एंड दैट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. जो इतना इसमें एब्जॉर्ब होता है उतना ही इसमें भी इमिट हो जाएगा, ठीक है ना. और आप फिगर में लिखोगे दीज आर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स. फिगर में आप क्या लिखोगे दोनों के लिए, इज अ spectroscopic transitions between what, molecular energy levels, ठीक है.
सो एग्जाम में आपको ऐसे आ सकते हैं, व्हाट स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो दिस आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन, रादर इट्स अ स्पेक्ट्रम के टाइप से, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के टाइप से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम. फाइन. तो सो दिस एक चीज़ आपको और ऐड करना है इसमें. सो दैट्स इन कंट्रास्ट टू, अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का और डिटेल में पढ़ते हैं, इन कंट्रास्ट टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा, okay, we have two types of spectra, atomic spectra and molecular spectra. So we can say in contrast to atomic spectra which arises from the transitions of an electron between the atomic energy levels, है ना. तो molecular spectra arise, molecular spectra किसे arise होता है, from three types of transitions. ठीक है. नंबर फर्स्ट इज रोटेशनल ट्रांजिशंस. दूसरा क्या है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन. एंड वी हैव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. ठीक है. ये ट्रांजिशंस है किसमें, मॉलिक्यूल में. सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फ्रॉम ग्राउंड टू द एक्साइटेड स्टेट. बट मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस में क्या होता है, रोटेशनल ट्रांजिशंस, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. सो वी कैन से, अभी तक आपको ये नहीं पता था कि जब मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं फ्रॉम ग्राउंड टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ई नॉट ई डैश, मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ही नहीं होते हैं, जैसे आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा में देखा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होता है फ्रॉम ग्राउंड टू द वो भी होता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. फाइन. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ इसको रोटेशन भी होता है, इसको वाइब्रेशन भी होता है. फाइन. सो हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ई टोटल है इन फॉर एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेट्स टेक एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब जो जिसके दो एटम्स है और बीच में क्या है, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. तो लेट्स टेक एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो फॉर एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल इट कैन बी ट्रू फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एज वेल. ठीक है. फॉर सिंपलिसिटी, फॉर मेक आवर कैलकुलेशंस मोर कन्वीनियंट, हम डायटोमिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर सकते हैं, आगे में कि हम सारा करना है. ठीक है. फिलहाल के याद रखो, जो ई टोटल होता है ना, दैट्स इक्वल टू ई वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ई रोटेशनल एनर्जी प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. ई टोटल एनर्जी ऑफ एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा देखना है उस मॉलिक्यूल के लिए, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, दैट्स इक्वल टू वाइब्रेशनल एनर्जी, उसकी रोटेशनल एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. और इसको ये किसने बताया, ये अप्रॉक्सीमेशन है, इसको बोलते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन. सो इसके अकॉर्डिंगली ये जो एनर्जी टोटल है ये इसके बराबर है. और साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, इट्स ग्रेटर देन ई वाइब्रेशनल एनर्जी, इट्स ग्रेटर देन ई रोटेशनल एनर्जी. सो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है ना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन करने में, वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके बाद वाइब्रेशन, उसके सो रोटेशनल. अब ऐसे याद रखो, मॉलिक्यूल को आपको रोटेशन करना है, वाइब्रेशन करना है, ट्रांजिशन करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करना है, तो सबसे ज़्यादा ईजी जो होगा ना, आपको मॉलिक्यूल को रोटेशन ईजी होगा करने में, देन वाइब्रेशन, देन इलेक्ट्रॉन. सो कैसे, इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होगी. ठीक है. तो इससे कम और इसको सबसे कम. ठीक है. ये सारा हमें आगे पढ़ लेना है. अगर आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, डोंट वेरी फॉर दिस पार्ट, क्योंकि आगे हमें ये फिर से अलग अलग से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमें ये सारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है अलग अलग से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. फाइन. तो इसके लिए इतना काफ़ी है. ये इसको बार बार देख लेना, बार बार इसको नोट डाउन करना. ठीक है. तो होप आपको ये सारा समझ आया होगा.